Are you getting? Yes? Yes, sir. Okay. So let's start the abrasion therapy. So what do you mean by the abrasion therapy? Abrasion therapy is the one of the therapy which we can give to the patient and which we can provide to the patient or person or client. So for the purpose of remembering with the feelings, मीन्स इसमें क्या होता है कि जो पर्सन के अंदर जो पास्ट में कोई भी इंसिडेंट हुआ है, इवेंट हुआ है एंड ही फॉरगॉट टोटली, if he will remember again in the present, so he will have the feelings towards the whatever he is remembering that past event जो ऑलरेडी सप्रेस्ड हो चुका है माइंड के अंदर, जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सप्रेस्ड होता है, जो इट विल कम आउट व्हेन एनी अनदर इंसिडेंट इज ऑकरिंग in the present situation, when the any event is occurring in the present situation, same thing it happened in the past, so that the person should have the feelings. So when the person is having the feelings and he will have the some of the emotional symptoms, so emotional, he will be crying, or he will be have tears in the ear or something, eyes or something. So he may something like feelings, so the sadness, happiness, something. So that person is become a relaxed. He will feel relaxed for the some time. So that is one of the abrasion therapy. जैसे इसमें हम बात करें कि कोई व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित हो जाती है पास्ट में, और वो प्रेजेंट में उन सिचुएशन को याद करता है, सिचुएशन को याद करके उन चीज़ों के अंदर उसको ग्रीफ होता है, ग्रीफ होने से उसको टीयर्स आते हैं, फील करता है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, तो पर्सन के अंदर जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो आई हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आई है, और वो चीज़ें उसको क्या होती है, एक्सप्लोर करती हैं, और पर्सन अपने आप को फील करता है कि मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, और थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को रिलैक्स फील करेगा. सो दैट इज वन ऑफ द एब्रेक्शन थेरेपी. सो इसके अंदर हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज कैथारसिस. कैथारसिस मतलब होता है प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग ऑफ द इमोशन. जो माइंड के अंदर जो क्लीनिंग है, जो इमोशंस होते हैं उनको बाहर निकालना थ्रू द टीयर्स, जो टीयर्स होते हैं उनके द्वारा उनको बाहर निकालना. तो प्यूरिफाई करना माइंड को, प्यूरिफाई करना और क्लींसिंग करना ऑफ द इमोशंस फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड. सो दैट इज नोन एज कैथारसिस. Now we have to go for the definition of the particular abrasion therapy: an emotional discharge after the recalling a painful experience that has been repressed because it was consciously intolerable. When the person is having any repressed feelings in the unconscious mind, if consciously he is feeling for some time, then he will have the uncontrolled experience, painful experience in his mind, so that the person is having the emotional discharge after the recalling a painful experience that has been repressed and because it was consciously intolerable. So that definition is given by APA, American Psychiatric Association, that is a 1980. Again we have to go for the aims. What are the aim of the therapy? So aim of the therapy to relieve the stressful event. Any person is having any stressful events, so that he want to relieve from the particular situation. So that is one of the aim by the abrasion therapy. Second is a recall स्ट्रेसफुल सिचुएशन. जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसको रिकॉल करना, और रिकॉल करके उसको थोड़ी देर के बाद अपने आप को रिलैक्स फील करना. तो दिस थेरेपी इज बिकम हेल्पफुल to recall the stressful situation. And another is the for remission of the symptoms. Any type of symptoms is when the patient is person is feeling, so that the remitted from his mind, from repressed feelings can be remitted from the his mind. So to correct basic psychopathology, when the person is having the any disturbance in the psychopathological condition because of any illness or any disorder, so that we can do for the correction, so by the abrasion therapy. Now we have to go for the indication. What are the indications? What are this therapy can be given for the particular those patients who are having the acute neurotic condition, जिनको neurotic conditions होती है, जैसे कि anxiety neurosis है, OCN है, obsessive compulsive neurosis है. These are the neurotic disorder. Neurotic disorder के अंदर if a person is having the acute neurotic condition, neurotic condition का मतलब होता है any imbalance in the neurotic factor, any chemical imbalance in the particular brain, so that is the person should have the anxiety neurosis. The more person is having the more anxiety,
and the person is having the more repressed feelings is become painful, and OCN, that is obsessive compulsive neurosis or disorder, when the person is having the irrational thought and repeated thoughts and ideas or images, and the person, according to that, the person is go for the abnormal movement or any abnormal event act, that is known as OCD. Extreme stress, when the person is having the more stress, when the person is having the fluctuation in the stress, the person just go for the extreme stress, so we can treat by the abrasion therapy. Then again phobia, when the fear of the particular situation, there are three types of the situation: general situation, specific situation, and social situation. There are three types of the phobia here: general phobia, specific phobia, and third is the social phobia. So किसी भी पर्टिकुलर जनरल सिचुएशन से उसको फियर होता है, दैट इज नोन एज जनरल फोबिया. स्पेसिफिक फोबिया, किसी भी स्पेसिफिक चीज या वस्तु से उसको यदि फियर होता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक फोबिया. यदि किसी पर्सन को सोशल सिचुएशन या सोसाइटी से डर लगता है, दैट इज नोन एज सोशल फोबिया. So in that particular situation, we can give the abrasion therapy. Then hysteria. Hysteria, as you know that hysteria already we have discussed here. Hysteria means that is a particular convulsions is coming from the body. So body is doing just like a rocking movement. When the person is getting any type of evil and devil spirit, जब कहते हो कि भूत प्रेत आत्मा जब शरीर में घुस जाती है, तो उसके बाद पर्सन अपने आप को बॉडी को ट्विस्टिंग करता है, और ट्विस्टिंग करने के बाद बॉडी का रेगुलर मूवमेंट होता है, बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर कन्वल्सन्स आते हैं. दैट इज वन ऑफ द एक पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन that any particular devil or evil spirit is spread in the particular person, so the person is doing this type of movement. But in the psychiatric they are not accepting this condition, and they will accept it as in form of hysteria, where the person is got the hysteria. So we can treat the hysteria with the antipsychotic drugs. Next is the reactive and neurotic depression, when the person is having the any type of reactive, any stressful stimuli or any stressful environment is become react to the particular person, and particular person is reacting according to the impaired stimuli. Normal stimuli or abnormal stimuli. According to the abnormal stimuli, the person is doing the abnormal activity. When the person is having a normal stimuli, the person is doing the normal activity. Neurotic depression, when the person is having the any neurological disorder that may develop into the depression. Neurotic का मतलब होता है कि any tension or any anxiety, they may develop into the neurotic depression, where the nerve supply is increasing, and there will be the ICP, intracranial pressure is also increasing, IOP is also increasing, intraocular pressure is also increasing. बिकॉज आपने देखा होगा कई बार कभी भारी सर हो जाता है, दर्द होने लगता है, भारी हेडेक होने लगता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वजन रखा हुआ है सर के ऊपर, तो ये एक प्रकार से उसको कहते हैं न्यूरोटिक डिप्रेशन. देन अगेन व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन. हम ये थेरेपी किन पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं? जिनको सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज होती है उनको हम नहीं देते हैं. सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज के अंदर जैसे कि आपके एग्जांपल है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको नहीं दे सकते, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, लंग्स इन्फेक्शन होता है उसको हम नहीं दे सकते, जिनको लिवर की बीमारी होती है, लिवर फेलियर हो जाता है, लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, तो लिवर के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, तो दैट कंडीशन में हम उसको नहीं दे सकते. दोज हू आर हैविंग द किडनी फेलियर हो जाती है, उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर थेरेपी को नहीं दे सकते. अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम ये थेरेपी हम कैसे देते हैं? जैसे कि एक इंजेक्शन आता है जिसको कहते हैं थाइपेंटोल सोडियम. आपने थाइपेंटोल सोडियम पढ़ा होगा ईसीटी के अंदर. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है उसके अंदर थाइपेंटोल सोडियम हम एक एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं जो 500 mg होता है, जो डिजोल्व करते हैं हम 10 cc ऑफ नॉर्मल सलाइन. जो नॉर्मल सलाइन की 10 cc होती है उसके साथ हम 500 mg थाइपेंटोल सोडियम एनेस्थेटिक एजेंट हम मिक्स करते हैं. उसके बाद हम उसको इन्फ्यूज कराते हैं पेशेंट को, जो उसकी रेट होती है 1 cc पर मिनट. मतलब 1 cc से ज्यादा, 1 मिनट में 1 cc से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. 1 cc ही हम उसमें रखते हैं कि पर मिनट 1 cc उसका इन्फ्यूजन रेट होती है, जो हमारे स्लीप को प्रिवेंट करती है और हमारे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करती है. यदि किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में, या किसी की स्लीप के अंदर स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, उसके अंदर हम उसको प्रिवेंट करते हैं.
उसके बाद सेकंड इंजेक्शन है आपका मैथेड्रिन। मैथेड्रिन जो होता है 30 to 60 mg डाइल्यूटेड इन द डिस्टिल वाटर। मैथेड्रिन जो इंजेक्शन है ये एंटी मस्कुलर रिलैक्सेंट होता है, जो मसल्स को रिलैक्स करता है। 30 to 60 mg हम डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर। उसके बाद है इनहेलेशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर। जो गैसियस मिक्सचर होता है उसको इनहेलेशन कराते हैं, जिसमें गैसियस मिक्सचर के अंदर 30% तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 70% ऑक्सीजन होती है। एक प्रकार का हम एक गैसियस मिक्सचर बनाते हैं जो 30% तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 70% ऑक्सीजन होता है। जो गैसियस मिक्सचर बनाने के बाद उनको पेशेंट को इनहेल कराते हैं। उसके बाद है पासिंग ऑफ द 10 to 40 वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर वोल्टेज देते हैं 70 to 120 और 130 वोल्ट हम देते हैं, बट यहाँ पर हम एब्रेक्शन थेरेपी के अंदर ECT के अंदर ओनली 10 to 40 वोल्ट देंगे, जो इसकी 50 साइकिल्स होती है, जो अल्टरनेट करंट हम प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द बाइटेम्पोरल इलेक्ट्रोड फॉर द 0.2 to 0.6 सेकेंड। उसमें क्या होता है 0.7 to 1.2 सेकेंड हम देते हैं। इसके अंदर हम देते हैं ओनली 0.2 to 0.6 सेकेंड, जो बाइटेम्पोरल इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हम उसको इन्फ्यूज कराते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एब्रेक्शन थेरेपी। अब इस एब्रेक्शन थेरेपी देने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि एग्रीवेशन सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पैनिक भी हो सकता है, पेशेंट एनेक्सियस भी हो सकता है, जो इमोशनल टेंशन होती है उसको रिलीज भी कर सकता है। एग्रीवेशन सिम्टम्स आते हैं साइकोसिस, साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया साइकोसिस, साइकोटिक कंडीशन इज दे बिकम इम्बैलेंस एंड पर्सन इज हैविंग द सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स। सुसाइडल टेंडेंसी, पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज डेवलप होते हैं, होमिसाइडल एक्टिविटी डेवलप होती है, सीवियर डिप्रेशन में पेशेंट चला जा सकता है। ठीक है, तो ये एब्रेक्शन थेरेपी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। सो दिस इज ओवरऑल दैट इज द एब्रेक्शन थेरेपी। सो एब्रेक्शन थेरेपी को हम किस प्रकार कैसे हम उसको दे सकते हैं, तो ये एब्रेक्शन थेरेपी है। नाउ इज द साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लास।